Hello everyone, this side Samaria here, this side Nikantapinor, and a person with a great vision on his mission to empower you all make at least a minimum of 50,000 rupees of monthly stable stream of income with the help of stock market guys by just working 1 hour of time the market. Now people think, Samaria, is it an illusion that you are telling us that we will be able to make 50k a month? Well, I did not promise you the time, right? Of course. So अगर आपको कॉलेज की डिग्री 4 साल में करके आपको एक रिजल्ट मिलता है, so how much time do you think if you're going to learn a lifetime stable stream of income is gonna take? So for some people it might be say 3 months, 4 months, 6 months, 1 year. I don't know man how much effort you are gonna put into that. Okay, my work is here to teach you. Okay, अगर मैं 100 बंदों को इकट्ठा एक जैसा सिखा रहा हूं तो आपकी एक IQ लेवल है, आपका एक ग्रेस्पिंग पावर है, राइट? तो some people will be learning early, some people will be learning late, but I am just telling you one thing here upfront. Okay, सीखना है तो पूरी शिद्दत के साथ सीखना, अदरवाइज निकल जाओ भी, ठीक है? सो टू एनरोल इन द फ्री ट्रेडिंग दिसंबर गाइस, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, दैट इज Samaria free trading December. You can just simply write it on the Google, that is bit.ly/Samaria DMAT. Now coming forward, we will be speaking about the yesterday's stock that was persistent. आपको मैंने बोला था कि ये स्टॉक फटेगा. Now again, let me tell you one thing here. I was not certain about the time frame here, okay, and how much it will go upward. तो बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि सांवरिया प्रॉफिट तो आ गया, अभी बुक कर लूं, अभी बुक कर लूं. मेरे भाई एक चीज समझ के देखो, अगर मेरे को इतना पता होता कि एक दिन में स्टॉक कितना भागेगा तो सुबह मैं उसकी 1 करोड़ क्वांटिटीज ना ले लेता, ठीक है? अगर आपको एक डिजायर्ड स्टॉप लॉस और एक टारगेट के साथ आपको ऑलरेडी बता दिया गया है तो बुद्धि का प्रयोग करो. इसको सिर्फ रखने के लिए नहीं है, इसको इस्तेमाल भी करना है. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. सॉरी फॉर द सार्काज्म, कभी कभी ऐसा निकल जाता है मेरे मुंह से. एनीवेज, मतलब बहुत forget it. It will be just be another chain reaction which I don't want to start here. So the point is guys, yesterday I told you about the persistent stock. So today we are going to discuss about the same stock, what are the possibilities, and I will be giving you one more stock. And here is one bit of a disclaimer here. I am not a SEBI registered person, and I am not authorized to give you any kind of information or so, like tips kind of thing, which I don't give actually. It is just for the education purposes, so you can learn actually, right, the price action with which these stocks perform and all those things. तो पहले आपको स्टॉक बताने से पहले मैं आपको आज की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा the stocks which we discussed in the free trading December private broadcast list. तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने किस किस स्टॉक्स के ऊपर कैसे कैसे आपको बताया था एंड उसमें क्या क्या रिजल्ट्स आए थे. तो चलिए शुरू करते हैं. Alright ladies and gentlemen, so now we are on the screen right now. So मैंने आपको स्टॉक बोला था कहीं पे यहाँ पे जब इसकी क्लोजिंग आई थी, तो मैंने लाइक क्लोजिंग से पहले ही बोला था 2:30 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपको बस एक बार जाके मैं अपना फेसबुक का पोस्ट दिखा देता हूँ क्योंकि वही वाला मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस भी था. अगर आप इस चीज़ को देखोगे, हाँ, परसिस्टेंट मैंने बोला था करीबन 2:38 के करीबन, मैंने वहीं से शेयर कर दिया इसका प्राइस. इसका प्राइस अगर आप देख रहे होगे स्क्रीन में तो इट वाज नियर बाय आई गेस ऑलमोस्ट 1329 उस टाइम पे चल रहा था इसका प्राइस, ठीक है, 1330 के करीब. तो 1300-1400 के करीब इसका प्राइस, 1330 के करीब इसका प्राइस चल रहा है. एंड दैट सेम डे ऑल्सो इट हाइक्ड अप, ओके, एंड इट ऑलरेडी गेव सो मच ऑफ अगेन इंक्रीमेंट. और अगर आप आज की रैली की भी बात करोगे, परसिस्टेंट हैज गॉन अप ऑलमोस्ट 5.62% गाइस. आप यहाँ पे देख रहे होगे ना, 5.62% द परसिस्टेंट स्टॉक हैज गॉन अप. इसके आज का हाई की बात करोगे तो 1467, 1468.85 it has made the high. Now guys, all of you who are asking me this thing, right, कि सांवरिया इसको कहाँ तक होल्ड करना है और क्या करना है, तो पहली चीज तो एक याद रखो, आपको मैंने टारगेट बताया था इसका कि ये जा सकता है 1500, 1600 या 1700 तक, ठीक है? बिकॉज लाइक all the IT companies are doing very well in this sector right now, and there are some other things associated with this as well. The chart pattern is very good, and I will be holding on to this stock. Tomorrow is Thursday guys, so कल सारे के सारे stocks कुछ करेंगे correction का मतलब है यहाँ से ये स्टॉक अभी भागता हुआ पागलों की तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे कल कंसोलिडेट करे, वीरवार के दिन यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल बना सकता है. मतलब अगेन दीज कॉन्सेप्ट्स यू विल बी लर्निंग आउट इन द अपकमिंग वीडियोस, और इफ यू विल बी एनरोलिंग इन द मेंटरशिप प्रोग्राम आई विल बी टीचिंग यू इन डिटेल, राइट? तो यहाँ पे कुछ ऐसा इनसाइड कैंडल बना सकता है, या लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट विल बी मेकिंग अ डोजी, ठीक है? मतलब ऊपर जाके एट द एंड कहीं पे थोड़ी यहाँ पे क्लोजिंग कर देगा, ठीक है? काइंड ऑफ दिस, बहुत ही गंदा कैंडल बनाया, कैंडल इज नॉट लाइक दिस. तो कहीं पे ऐसे करके कुछ इसकी क्लोजिंग आ सकती है, ठीक है? नाउ देखने वाली बात ये है कि ये कैसे करेगा, ओके?
क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी स्टॉक हो सिंगल डायरेक्शन में नहीं भागता है, ठीक है। अगर आप यहां पर भी देखोगे दिस स्टॉक वेंट अप हाई, ओके, उसके अगले दिन इसने क्या किया था, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूं, सो यू कैन सी इट आउट, राइट। लाइक दिस डे ऑल्सो द स्टॉक वेंट अप हाई, ठीक है। उसके बाद अगले दिन ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हुआ, कहीं पे ऊपर गया, एंड यहाँ पे फिर इसने टाइम स्पेंड किया। सी गाइस, एक चीज हमेशा याद रखना, एक स्टॉक जितना कंसोलिडेट करके भागेगा ना, उतना उसका अपसाइड का मूव और निश्चित हो जाता है कि वो ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टॉक विच इज गोइंग टू बी इन अ बुलिश मोड, ठीक है। तो स्टॉक जितना एक कंसोलिडेट करेगा उतना ही बेहतर है, ठीक है। नाउ इफ दिस स्टॉक is going to consolidate here in the range of, मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ it is gonna surely gonna hit near by 1500। ये पत्थर के ऊपर लकीर जैसा नहीं है ऑफ कोर्स, बट मेरा एक कन्विक्शन है, ठीक है, कि जैसे मैंने कल बोला था कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आज जैसे ऊपर चला गया ऑफ कोर्स, बट ये चीज़ मैं इस बिना पे नहीं बोल रहा कि लाइक आई एम 100% श्योर इन द मार्केट। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में मार्केट की सुनो, आपको क्या लग रहा है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, द प्राइस एक्शन, देन ऑफ कोर्स यू आर गोना बी द बिगेस्ट फूल ऑफ एंटायर मार्केट, ठीक है। क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई भी नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ना आप हो, ना मैं हूँ, ना वॉरेन बफेट है, ना राकेश झुंझुनवाला जी हैं, ठीक है। हर एक बंदा मार्केट को रिस्पेक्ट करता है, तो आप भी करोगे तभी उसमें पैसे कमा पाओगे। नाउ कमिंग अप अहेड, द थिंग इज कि इसके बाद क्या हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से हो सकता है कि भी 1500 को टच कर दे। तो अगर आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जिन लोगों ने यहाँ पे करीबन इसको बाय किया होगा, पीपल हु वुड हैव बॉट इट हियर, they can book some profit. Suppose if you would have purchased 100 quantities of the stock, you can exit, I would suggest कि 50% quantities आप यहाँ पे बुक कर लो, ठीक है, और बाकी जो 50% क्वांटिटीज है आप उसका स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर लो, ठीक है। मतलब आपने अगर कहीं यहाँ पे खरीदा है, तो आपने जिस पॉइंट पे खरीदा है उसको उसी पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। एंड टुमारो यू कैन एग्जिट विद सम क्वांटिटीज। एंड अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक जैसे इसने एक रैली दी, उसके बाद कुछ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर से फटा, राइट, इट गेव द अपर मूव। द सेम थिंग इज गोना हैपन अगेन गाइज, द स्टॉक इज गोना गिव अ अपर मूव, देन अगेन इट इज गोना कंसोलिडेट, एंड वन सिंगल डे इट इज गोना मेक अ गुड फाइन ग्रीन कैंडल, राइट, दैट इज गोइंग टू बी अ बुलिश सिग्नल। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई विल बी होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर अ मिनिमम ऑफ 1600 रुपीज, टू बी वेरी फ्रेंकली सेइंग, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1600 तक पक्का चला जाएगा, दिसंबर में चला जाएगा या जनवरी में चला जाएगा, मेरे को नहीं पता भाई कब जाएगा, बट जब भी जाएगा मैं 1600 पे जाके फिर जाके देखूंगा कि वहां पे जाके प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, कहीं वहां से पैटर्न रिवर्सल के साइन तो नहीं दिखा रहा। क्योंकि अगर आप इसका चार्ट का पैटर्न देखोगे मंथली के ऊपर, अगर मैं लगाता हूं तो दिस इज द मंथली चार्ट गाइज, एंड ये जो स्टॉक है गाइज इट वाज स्टार्टिंग इन ऑलमोस्ट 2010, ठीक है। उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई पे है अभी, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा स्टॉक हो जिसका ऑल टाइम हाई पता ना लगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा देख के भी काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखोगे दिस स्टॉक एक्चुअली मेड अ हाई इन 2014 and 15 नियर बाय दिस एरिया, दिस एरिया वाज नियर बाय 900 या 1000 के करीब अगर आप लगा लो इसको, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक ने फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे हाई ब्रेक करने की कोशिश की, बट हुआ नहीं 2018 के बीच में। नाउ दिस स्टॉक हैज फाइनली ब्रीच दिस हाई, तो हो क्या सकता है ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जब कोई रिएक्शन कोई करेक्शन आनी होगी, तो हो सकता है धीरे धीरे लुढ़कता लुढ़कता द स्टॉक कैन कम अगेन टू दिस 1000 लेवल अगेन। क्यों? क्योंकि होता ये है कि जो एक प्रीवियसली रेजिस्टेंस बना होता है एक स्टॉक में, ठीक है, द सेम रेजिस्टेंस एरिया इज गोना बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट अगेन। अभी बहुत सारे लोगों को ये नई नई टर्म्स जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट पैनिक, ओके, कीप द फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहां से स्टॉक को प्रॉब्लम आती है ऊपर जाने की तरफ। रेजिस्टेंस इज अ प्लेस और एन एरिया, पहली बात तो ऐसी समझ लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दीज आर ऑलवेज गाइज एन एरियाज, ठीक है। कुछ बंदे बोल देते हैं जैसे कि मेरे को लग रहा है SBI का ये 200 रुपये का रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। भाई साहब कोई भी बंदा ऐसे आपको नहीं बोल सकता है। लाइक अगेन मेरे अनुसार द थिंग दैट आई फील, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इज ऑलवेज एन एरिया, ओके। इट इज़ नॉट कि एक सर्टेन लेवल है वो, या 200 का नंबर है या 150 का नंबर है या 178.85 का नंबर है, दीज आर ऑल द मिथ्स, ओके। मार्केट कैन एक्चुअली लाइक बहुत बार फर्क हो जाता है उसमें। अगर आप ये चीज़ चेक करोगे, ये बोलोगे कि भाई ये यहाँ पे सपोर्ट है, इसको यहीं से मुड़ना है, तो यहाँ पे अगर इसका लो चेक करोगे, द लो इज 536, यू कैन चेक द लो हियर गाइस, इफ आई विल बी चेकिंग इट आउट, द लो इज 536, ठीक है। अगले महीने इसने लो लगाया 532, तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट यहीं से क्यों घूम जाएगा, तो यहाँ पे देखो ऑलवेज 468 तक आया था, या राइट। तो अगेन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक एरिया डिफाइन होता है मार्केट का, कभी भी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का होगा, तो वहां से वो प्राइस एक्शन के अनुसार डिसाइड होता है कि ये मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इट हैपेंस। तो आगे चलते हैं।
तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम मेरा जो टारगेट रहेगा 1600 रुपीज़ का रहेगा, उसके बाद जाके आई विल बी थिंकिंग कि मेरे को अभी यहाँ पे स्टॉक का क्या करना है, ठीक है। हो सकता है कंपनी यहाँ पे बोनस दे दे या स्प्लिट कर दे, वो बात की बात है। मतलब बहुत सारी IT कंपनीज करती हैं, आउट ऑफ 10 कंपनीज 8 कंपनीज परफॉर्म वेरी गुड ओके इन IT सेक्टर एक्चुअली, लाइक जहाँ तक मैंने देखा हुआ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। बाकी अगर आप किसी और सेक्टर की बात करोगे तो हो सकता है कि उसमें लाइक एक इक्का दुक्का कंपनी हो जो अच्छा काम करे, बाकी हो सकता है आई डोंट नो लाइक तो ये चीज़ें हैं कुछ। अभी इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कल अगर 1500 का टारगेट हिट हो जाता है तो वहाँ पे आप अपनी 50% क्वांटिटीज बुक कर सकते हो। कुछ जो बेसब्रे लोग हैं और जिनको कुछ लेना है तो वो 1600 या 1700 तक का जितना भी टारगेट आएगा वो वहाँ पे जाके अपनी क्वांटिटीज एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक की थी कहानी। इसके बाद हम चलते हैं आज का जो स्टॉक का एनालिसिस था हमारा, ठीक है। लेट्स जस्ट गो देयर। So if you will be checking it out guys, this is a stock, this is a free trading December group. If you want to enroll into this group, you can simply do that by enrolling by clicking in that link, that is bit.ly/Samaria Demat. You just have to open a Demat account. Now so many people have this doubt as well, Samaria, I already have a Demat account, do I need to open another one? Guys, ये जो मेरा लिंक है, अगर आप यहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, इफ यू विल बी ओपनिंग द डीमैट अकाउंट विद दिस लिंक, यू विल नॉट बी पेइंग अ सिंगल ब्रोकरेज फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है। आपको 1 महीने तक की कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, मतलब जो भी आपका ट्रेडिंग होगा या इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। एंड उसका एक और फायदा है, ये अकाउंट खुलेगा फ्री में। There is not even a single rupee that they will be charging from you if you will be opening from this link. And also आपको 1 साल तक का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रहता है, AMC चार्जेस रहेंगे जो उसके अकाउंट के, वो भी आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू गेटिंग। एंड अगेन कुछ लोग बोलते हैं कि सांवरिया 1 से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर लूँ कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। मेरे भाई, अगर आपके 1 से ज़्यादा बैंक अकाउंट हो सकते हैं तो डीमैट अकाउंट होने में कोई हर्ज नहीं है। आपको कोई घमौरियाँ या पित्त की शिकायत नहीं हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। आई माई सेल्फ हैव ऑलमोस्ट 5 डीमैट अकाउंट्स इन डिफरेंट ब्रोकर्स। तो हर एक ब्रोकर के अपने अपने एडवांटेज हैं। एंजल में भी बहुत सारे एडवांटेज हैं जो जीरोधा में या अपस्टॉक्स में नहीं है। इन द अपकमिंग वीडियोस ऑफ कोर्स आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट दैट, डोंट वरी। सो अभी काम की बात करते हैं। हाँ, तो अगर आप ये चीज़ पढ़ पा रहे होगे तो ये चीज़ आपको समझ में लगेगी कि जो लोग मेरे पास आएंगे कि सांवरिया भैया कुछ टिप्स देंगे, तो भैया मैं पिछवाड़े पे लात मार के आपको निकाल भी सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू टीच यू, ओके। बट इफ यू आर जस्ट गोइंग टू एनरोल इन माई प्रोग्राम और इन एनी ऑफ द थिंग्स कि सांवरिया से कोई टिप्स मिल जाएंगे, बॉस दैट थिंग डजंट वर्क हियर, ओके। मैं पढ़ाने में मतलब विश्वास रखता हूँ। अगर पढ़ने आओगे, सीखने आओगे तो 100 बार आपका लाइक आदर सत्कार करके आपको सिखाऊंगा। बट अगर है कि गेट रिच क्विक सम काइंड ऑफ स्कीम इफ यू आर लुकिंग फॉर, भाई घर पे बैठ के मूंगफली खाओ, आपके लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही मुंह पे बोल देता हूँ। एंड ऑल ऑफ यू, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर वंस, दैट वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, ओके। आई विल बी गेटिंग यू थ्रू विद दैट। आपको पॉज करके भी वीडियो दिखाते हैं वो। सो गाइज, वंस यू क्लिक bit.ly/Samaria Y in the Google, you will be redirected to my page. And this is the video I'm speaking about guys, the disclaimer one. आप इस वीडियो को प्लीज जरूर देखो, ठीक है, because I am just here to teach you the things. I'm not giving any kind of advices to buy or sell any stocks. Whatever the profit or losses you will be having, it will be totally be at your own risk. I will not be liable for any of the things, okay. मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। 100 बार सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज़ इट। अभी बात करते हैं स्टॉक्स की। सो ओके, सो आई वाज टेलिंग यू, मारुति 7500 के पास जाके एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, 7500 या 7530 के करीबन। जैसे मैंने बोला कि अगेन स्टॉक्स आर सब्जेक्टेड टू द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस विद इन एन एरिया, राइट। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, मारुति का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे हम। दिस इज मारुति's 5 minute चार्ट, इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट। तो मॉर्निंग में ही मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि ये स्टॉक 7500 या 75-30 के पास जाके कुछ गंद डाल सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। एंड अगेन एग्जैक्टली फ्रॉम दोज लेवल्स इट केम आउट। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू फील गुड दैट वट एवर आई डू इट इज़ लेकिन द सुप्रीम थिंग। भाई मैं गलत भी होता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एंड शेयर माई एनालिसिस, ओके हियर। तो अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एक एरियाज रहते हैं, ठीक है। तो एक्जैक्टली 7500 के ऊपर जब गया, यहाँ पे इसने ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। एंड यहाँ पे इट वाज अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। उसके बाद फाइनली एक ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ एंड फाइनली द प्राइस केम डाउन। एंड ये सारी की सारी चीज़ें होती गई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, मैंने बोला था IRCTC बाय कर लो गाइस MIS में एट 924, ओके गाइज।
Okay guys, so I'm having severe cold right now. I'm not able to speak even, but still I'll be making sure that you guys see this video at 9 p.m. So उसके बाद मैंने बोला था गाइस कि TC सॉरी ये बाय करना है IRCTC राइट, एंड TCS ऑल्सो आई टोल्ड राइट. उसके बाद हुआ क्या, विल बी जस्ट सेइंग इट आउट व्हाई आई टोल्ड टू बाय TCS एंड IRCTC. IRCTC में एक्चुअली एक बहुत बड़ा रिजेक्शन आया था गाइज, इफ़ यू कैन सी दिस आउट. तो मार्केट नीचे जाके एक उसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी थी राइट. तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. और यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप एक ऐसे स्टॉक में काम कर रहे हो, लाइक सी बेसिकली इफ़ यू वांट टू डू ट्रेडिंग राइट, उसमें आपका एक रेशियो रहता है, ठीक है. एंड व्हाट आई प्रेफर इज लाइक वन कैन एक्चुअली बाय और book the profits, you know, the stop loss and target in some ratios. okay, basically I take it as minimum 1 to 1. मतलब अगर आपको IRCTC के स्टॉक में काम करना है, 1400 रुपये का स्टॉक है, तो आप इसमें 5 रुपये लेके निकल जाओ, ठीक है. 5 रुपीज़ इज मोर देन इनफ इन सच स्टॉक्स. जो स्टॉक्स लाइक आर एक्सीडिंग इन द रेंज ऑफ 1000 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़, आई जनरली टेक 5 रुपीज़, ठीक है. एंड इसमें 5 रुपये का ही आपका स्टॉप लॉस लगेगा, 5 रुपये तक का ही आपका टारगेट लगेगा. क्यों बोला था उसका मैंने रीजन बता दिया कि मार्केट नीचे जाके आके इसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दी राइट, दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, द मार्केट इज शोइंग दैट राइट, द बुल्स आर हैवियर हियर. एंड इसके बाद अगर आप इसका हाई देखोगे, द हाई वाज 1405 एंड अगले कैंडल में इसने मार दिया 1410, ठीक है. 5 रुपये का आपका टारगेट इजीली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो ये चीज़ थी फॉर द IRCTC. उसके बाद बात कर लेते हैं TCS की. TCS में भी एक्चुअली सेम पॉइंट था. आई एम सॉरी. सो TCS में भी एक्चुअली सेम पॉइंट था गाइस. TCS ऑफ कोर्स बिलोंग्स फ्रॉम द IT सेक्टर. तो यहाँ पे और भी एक चीज़ें थी कि IT के सारे जो स्टॉक्स हैं वो सॉरी अपवर्ड मोशन में जा रहे हैं. भाई साहब लगी पड़ी है तो लंका, ठीक है. तो यहाँ पे भी एक्चुअली अगेन सो द TCS इज ऑल्सो लाइंग इन द रेंज ऑफ 2000 रुपीज़. अभी तो जैसे इसका प्राइस बढ़ गया है, तो ये तो नन्ना मुन्ना होता था जब मैं इसको देख रहा था. 1600 रुपये या 1500 रुपये से इसको देखना स्टार्ट किया था मैंने TCS को. अभी देखते देखते आंखों के सामने बड़ा हो गया स्टॉक. ये भी एक अजीब सी और बहुत ही अद्भुत फीलिंग होती है. यू विल बी एबल टू यू नो लाइक रिमेंबर इट राइट फॉर लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो इसमें भी आप अच्छे से पैसे कमा सकते थे. तो उसके बाद यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, इफ़ यू विल बी ड्राइंग द ट्रेंड लाइन लाइक दिस. तो द फर्स्ट हाई इज हियर, द सेकंड हाई इज हियर. उसके बाद यहाँ पे ब्रीच हो गया. इसके बाद जब आप इसको बाय करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 4-5 रुपये का टारगेट यहाँ पे भी आ जाएगा. और मेरे को पता नहीं मैंने किस टाइम पे बोला था TCS 9-20 पे, हाँ स्टार्टिंग में बोला था. ऑफकोर्स इन दैट पॉइंट ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट्स द डिजायर्ड वंस. 4-5 रुपये का आ जाएगा. उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे अगेन बोला था बाय मेट्रोपोलिस टुडे, एंड बिलीव मी दिस वॉज द मोस्ट अमेजिंग स्टॉक. ओके, इट गिव मी गुड रिटर्न्स. अगर मैं मेट्रोपोलिस का दिखाऊं आपको चार्ट आज, तो क्या शानदार रैली की है इसने स्टॉक ने. सुबह ओपन होते ही बहुत अच्छा किया था. कल एक्चुअली जो इसने क्लोजिंग की थी, क्लोजिंग के टाइम पे भी मैंने बोला था कि यू नो द स्टॉक इज हॉल्टिंग हियर एंड इट इज़ यू नो इट विल बी बर्स्टिंग, ठीक है, एक बार में फटेगा. और एक सिंगल कैंडल ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया था कल. उसके बाद यही चीज़ रिज्यूम हुई आज भी. तो स्टॉक वाज मेकिंग अ बिग बुलिश ग्रीन कैंडल. उसके बाद स्टॉक हॉल्ट किया कुछ यू नो, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आ गया. सिंस दिस स्टॉक इज ऑफ कॉस्ट ऑफ 1900 रुपीज़, मैंने स्टूडेंट्स को खास करके बोला था कि इसको एंटायर डे के लिए होल्ड करना. इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन थे गाइस क्यों मैं इसको बोला था. इसमें मैं 2000 रुपीज़ का आज लेवल एक्सपेक्ट करा था, जो कि आया नहीं है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2000 का इसने हाई तो नहीं काटा आज, हाँ 1968 पे ही गया था. लाइक इट वॉज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट. तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल देता हूँ तो वो पत्थर की लकीर नहीं है गाइस, ठीक है. आई एम ऑल्सो जस्ट अ ह्यूमन बींग एंड आई एम जस्ट डूइंग माई बेस्ट टू डू द एनालिसिस. ओके, तो उसके बाद वो चीज़ स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के परस्पेक्टिवली कैसे होती है वो तो चार्ट पैटर्न्स या मार्केट का प्राइस सेक्शन देख के डिपेंड होगा राइट. तो यही चीज़ थी कि मेरे को लग रहा था कि 2000 का लेवल आज काट देगा, बट उसने काटा नहीं है. देखते हैं अभी होता क्या है, ठीक है. तो स्टॉक्स में इसमें प्रॉफिट आ गया था. उसके बाद मैंने बोला था वास मेट्रोपोलिस क्रॉसेस 34-35 लेवल, बूम विल हैपन. तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ऑलमोस्ट 34-35 का लेवल कहाँ पे, हाँ पता नहीं कहाँ पे गया, ये था आएगा, हाँ ये वाला लेवल था राइट, 29, 30, 34 राइट. तो उसके बाद यही चेक कर रहे हो, तो इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं गाइस, ठीक है. 34-35 का लेवल क्रॉस करते ही बहुत बड़ा बिग ग्रीन कैंडल बना राइट. तो ये चीज़ है जो लाइक आपको ना एक एज देती है बाकी ट्रेडर्स से और बाकी इन्वेस्टर्स से, जो लोग सिर्फ एक क्या बोलते हैं तुक्का मारने आते हैं कि मार्केट में चलो आज ये स्टॉक ले लिया, चल गया तो चल गया, नहीं तो पैसे गुम जाएंगे, ठीक है. तो या तो सीख लोगे इस प्राइस एक्शन को, तब तो आपकी भाई ज़िंदगी संवर जाएगी, ठीक है. अदरवाइज मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं जो तुक्का मार के काम करते हैं अपना. तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ ऑफकोर्स, बट मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है, अगर आप विलिंग हो तो, ठीक है. अभी आगे बात करते हैं
this was my own portfolio. In the morning I was having a 4,000 rupees of profit, right? You can see the time stamp here as well. 9:37 is the time guys here. उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था 1956 मेट्रोपोलिस हो गया. मैंने उनको बोला था कि 50% प्रॉफिट बुक कर लो गाइस, ठीक है, एंड होल्ड द रिमेनिंग. तो यही चीज़ थी. उसके बाद अगेन 9:40 पे मैंने उनको एक स्क्रीनशॉट भेजा था. द प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़. तो गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट में ना पैसा उसी को मिलता है जिसके पास पेशेंस होती है, ठीक है. अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको भी. ऑलराइट, सो बाय रिलायंस CMP मैंने बोला था 10:23 पे. रिलायंस का स्टॉक अगर देखोगे आप 10:23 पे 10:23, अभी पता नहीं कहाँ पे है 10:23. ओके हाँ, तो यहाँ पे भी एक्चुअली इसका यही प्राइस सेक्शन बन रहा था गाइस. इफ आई विल बी जस्ट बी शोइंग यू, तो मार्केट में अगर ये एक पॉइंट था, ठीक है, उसके बाद नीचे या फिर इसी पॉइंट पे होल्ड कर रहा है, तो इस पॉइंट के लाइक आसपास ये जो घूम रहा है, राइट, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है. बट हाँ, अगर इसको फाड़ देगा तो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके मैंने उनको बोला था कि आप यहाँ पे रिलायंस को बाय कर सकते हो, ठीक है. एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने बोला था 1928 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है गाइस. ओके, इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट, अगर कोई बंदा यहाँ पे 1935 या 30 के पास में बाय करोगे इसको और 1928 का आपका स्टॉप लॉस है, तो सिर्फ 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस है, राइट. तो अगेन यहीं पे 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके अगेन आपको अगर अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज अ ग्रेट थिंग, राइट. तो इसी चीज़ को आपको सीखना है कि आपको कम पैसे में जहाँ पे रिस्क लगेगा वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट कैसे आप कमा सकते हो. ऑलराइट, तो यही चीज़ हमेशा आपको काम भी आएगी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है. उसके बाद टारगेट 1945-50 का था, आई गेस अचीव हो गया था. हाँ, 1945-50, यू कैन सी दैट, राइट. आफ्टर इवेंचुअली इन द पीरियड ऑफ टाइम इट वाज अचीव्ड एज वेल. तो गाइज अगेन कोई इतनी प्रेज की बात नहीं है कि स्टॉक मैंने बोला तो ऊपर चला गया. तो ऑफकोर्स लाइक प्राइस सेक्शन है, वो कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है, दैट ऑल डिपेंड्स. आईजीएल गाइज मैंने बोला था, स्ट्रिक्टली बोला था इस प्राइस पे बाय करना है. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो करंट मार्केट प्राइस पे लगा लेते हैं ऑर्डर, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट आई टीच इन बेसिक मेंटरशिप प्रोग्राम, दैट इज आइसक्रीम कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो जिन लोगों को तो पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अभी इस वीडियो को देख के खुश होंगे कि उन्हें पता है. जिनको नहीं पता है वो सोचेंगे कि आइसक्रीम का क्या फंडा है भाई अभी. तो आईजीएल का स्टॉक मैंने बोला था 488.5 के करीबन में लेना है इसको. उसका भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट था गाइस, ठीक है, 488 के करीब. यहाँ पे एक्चुअली ये हॉल्ट कर रहा था, और जैसे ही इसका 488 का ये वाला लेवल इसने एरिया इसको ब्रेक किया एक ही कैंडल ने, उसके बाद देखो कितना बड़ा बूम आया, ठीक है. तो 488 से ऑलमोस्ट 93, अगर आप चेक करोगे इसी पॉइंट पे, अगर इसका मेजरमेंट करके दिखाऊँ आपको मैं, तो इट गेव ऑलमोस्ट अ रैली ऑफ 5 पॉइंट्स, राइट. तो 4 रुपये के स्टॉक में अगर आपको 5 रुपये मिल रहे हैं ना, तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है. मैं बेसिकली 400 रुपये के स्टॉक में, सॉरी नॉट 4 रुपये, इफ आई एम वर्किंग इन अ 500 रुपीज़ ऑफ स्टॉक, आई एम मैक्सिमम लुकिंग फॉर 2 रुपीज़. ओके, दैट इज़ हाउ आई वर्क. ओके गाइज, तो 2-2.5 रुपये का मैं काम करके इसमें से निकल जाता हूँ. उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक वाज गाइज, हाँ आईजीएल हो गया. इसमें टारगेट मैंने बोला था 380, 390, 400 कोई भी आ सकता है. एंड अगेन इट इज़ अ होल्डिंग स्टॉक एज वेल, मैंने ये भी बोला था, ठीक है. तो अभी पता नहीं इसका मैक्सिमम हाई कितना गया आज का, इसका यही हाई है 496, राइट. तो अगेन 490 का आपका या 480 का टारगेट तो आ ही गया. 2 टारगेट्स उसमें से आगे थे आपके, तो 400 नहीं गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, लड़ थोड़ी पड़ेंगे अब स्टॉक से हम भाई तू पैसे नहीं देके गया. सो दिस वाज वन स्क्रीनशॉट गाइज दैट वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सेंट मी. सो अगेन ही मेड द 2 stocks DLF एंड मारुति, 1800 रुपीज़ प्रॉफिट्स. एंड द प्रॉफिट परसेंटेज ही शेयर्ड मी वॉज दिस गाइस. अगर आप चेक करोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज मेड इन मारुति इज ऑलमोस्ट 1.82% ऑन द कैपिटल. ओके, एंड सेकंड वन इज 4.58%. एंड एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, इफ यू एनरोल इन माई बेसिक मेंटरशिप प्रोग्राम, आई विल बी टीचिंग यू हाउ यू विल बी एबल टू जनरेट ऑन अ डेली बेसिस 2% to 35% बाई जस्ट वर्किंग 1 hour ऑफ टाइम इन द मार्केट. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं ऑलरेडी. आप भी कर सकते हो अगर आप काम करोगे तो कैलकुलेशन है इसके पीछे का सारा कैसे है. तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने एरर्स किए थे. तो अगेन सी गाइज, मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, इंसान जब भी कोई चीज़ नहीं सीखता तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें वो गलत करता है, ठीक है. एंड अगेन व्हेन द पीपल दे डू आस्क अ क्वेरी, आई ऑलवेज मेक श्योर कि वो बाकियों को भी पता लगे, ठीक है. इसीलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल के ग्रुप में डाल दिया कि उन सभी बंदों को भी पता लग जाए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ होगी. उसके बाद ये कौन सा स्टॉक है, हाल का स्टॉक है गाइज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल. ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे को लग रहा है आज, सॉरी फॉर दैट. अगर आपके पास पेशेंस है तो देख लेना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम.
हाँ ये स्टॉक है भाई जिसमें आज बेड़ा गर्क हो गया, हमारा कुछ भी नहीं हुआ इसमें। हाल की अगर मैं बात करूँ, इसने हाल बेहाल कर दिया। 805 के करीबन था, 805। सो सारा दिन यहीं पे गया। एक्चुअली स्टॉप लॉस से हिट नहीं हुआ, मैंने स्टॉप लॉस बोला था इसमें 800 रुपये का रखना है। हाँ, कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 800 एंड टारगेट 810 820। तो ये बंदा कुछ भी नहीं करके गया एंड में, मतलब लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ एक जगह पे, लाइक आई विल से कुछ भी नहीं हुआ इसमें। तो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। ये है 20 माइक्रॉन्स गाइस। 20 माइक्रॉन्स इज जस्ट अ पेनी स्टॉक, 40 रुपीज़। इफ़ यू विल बी चेकिंग इट आउट, मैंने बोला था करंट मार्केट प्राइस पे इसको खरीदना है, ठीक है। 40 रुपये 70 पैसे का इसका भाव था उस टाइम पे। इसमें भी बोला था स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है गाइस एंड टारगेट आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज 42 प्लस, ठीक है। एंड इफ यू विल बी चेकिंग इट आउट, ये एक ही बार में निकल गया था सारा 20 माइक्रॉन। तो यहाँ पे 42 का टारगेट इजीली अचीव हो गया। यू कैन सी दिस राइट। आज का इसका जो हाई होगा, अच्छा ये यहीं पे है, सॉरी। हाँ मतलब हमारा टारगेट एक्चुअली आ गया, हमें उससे मतलब है, बाकी हमें कोई चीज़ों से मतलब नहीं है। उसके बाद ये आ गया 42 का टारगेट निकल गया। उसके बाद मैंने बोला था गाइस पीवीआर लेना है। पीवीआर में भी बहुत अच्छा था, प्राइस सेक्शन यहाँ पे बन रहा था। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बोला था पीवीआर में भी, एंड इसमें भी मैंने बोला था सीएनसी में भी इसको आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टाइम होल्डिंग। एंड ये था, हाँ इसका 20 माइक्रोन्स का मैंने स्क्रीनशॉट डाला था उस टाइम पे कि गाइस प्रॉफिट आ गया, निकल जाओ। उसके बाद पैनम पेट्रोलियम का वही डाला था मैंने स्क्रीनशॉट। पहले पीवीआर देख लेते हैं, पीवीआर रह गया हमारा 1285 रुपये है शायद, 1288 या पीवीआर भैया कहाँ पे हो। सो गाइस या यू कैन सी राइट व्हाट हैपेंड इन पीवीआर अगेन। तो यहाँ पे पीवीआर का स्टॉक बदला गया था आपको करीबन क्या टाइम है आप इसका, ओके यहाँ से स्क्रीनशॉट से पता लगा 2:08 के करीबन बोला था, 2:08 यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी किस्मत है मेरी, जैसे बोला उसके बाद ही फट गया ऑलमोस्ट थोड़ी देर में ही। तो इफ़ यू विल बी सीइंग इट आउट हियर एज वेल राइट, कि यहाँ से जब स्टॉक गया ऊपर तो ऑलमोस्ट कितना गया भाई साहब 2.5% चला गया, 30 रुपीज़ इन अ स्टॉक ऑफ 1300 रुपीज़। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज ओनली 5 रुपीज़ राइट। तो भाई अगर आपको उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा हो ना, तो उसमें हड़बड़ा के फट मत जाया करो, उसमें जितना प्रॉफिट होता है बुक करके निकला करो, ठीक है। तो वही चीज़ है। एंड इसमें भी मैंने बोला था पीवीआर को भी आप सीएनसी होल्डिंग में भी रख सकते हो अगर आपकी क्षमता है तो। उसके बाद ये हो गया था माइक्रोन का पैनम पेट, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। पैनम पेट्रोलियम में आज मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं किया इसने, मतलब सुबह ही रैली दे दी थी, उसके बाद तो चला नहीं है। बाय सॉरी स्टॉप लॉस टारगेट, आई एम सॉरी गाइज। सॉरी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें भी हाल वाली चीज़ हुई है, बेहाल हुआ ये भी स्टॉक। तो आगे चलते हैं। उसके बाद अमराजा बैटरी का स्टॉक दिया था गाइज मैंने यहाँ पे। ये भी एक ट्रेंड लाइन थी जो ब्रीच होने वाली थी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी। रब्बा बेचारा मैनू अज तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई थी, बट स्टिल आई टोल्ड द गाइज टू बाय द स्टॉक। मैंने बोला था ये पीवीआर का है, सॉरी। हाँ उसके बाद मैंने अपडेट नहीं दिए। तो ये बचा है अमराजा का। मेरे ख्याल से अमराजा ने भी कुछ नहीं किया होगा, बेइज्जती मुंह पे कर दे तो स्टॉक की। हाँ नहीं 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 भाई, ये करके गया है, ये पैसे दे के गया है। तो अगर इस स्टॉक की बात करोगे तो कहीं पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी राइट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मैंने पुराने वाले पॉइंट लगाए हुए हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट। बट जब आपके पास एक नया वाला स्विंग आ गया है तो आपको पिछले पॉइंट को शिफ्ट करके आगे लेके आना होता है। एंड आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी, 945 इसका हाई था, तो आपको यहाँ पे बाई करना था। एंड 900 रुपये का स्टॉक है, इसमें 2-3 रुपये लेके निकल जाना। बट अगेन आफ्टर दिस थिंग इसमें ईजिली प्रॉफिट तो आ गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके इंट्राडे के पोजीशंस होते हैं दे गेट ऑटोमेटिकली स्क्योर्ड अप बाय द आरएमएस ऑफ द ब्रोकर क्लोज टू 315 to 318 टाइम। एंड उसके बाद कोई चीज़ नहीं भाई, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मेरे से अभी वीडियो नहीं बनेगी। मम्मी का भी कोई वीडियो आ गया है, मैं जा रहा हूँ यार।
अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया, इफ़ यू लाइक द एनालिसिस गाइज, एंड इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन द फ्री बेसिक मेंटरशिप प्रोग्राम, फ्री ट्रेडिंग दिसंबर दिस प्रोग्राम, देन यू जस्ट नीड टू ओपन द डीमैट अकाउंट। एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा है ये वीडियो, अगर आपके लिए कुछ नॉलेजेबल था, देन डू कॉमेंट ओके कि आपको इसमें से क्या सीखने को मिला है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना भाई, अपने बहनों को, मित्रों को, भाइयों को, सभी के साथ शेयर कर दो ये वीडियो। इसके साथ मैं 9 PM की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, रोज़ 9 बजे आपको एक वीडियो आएगा, उसको देखना, उसको समझना कि हमने आज किस बेसिस के ऊपर स्टॉक्स लिए थे, क्यों लिए थे, कैसे प्रॉफिट रहा, कैसे लॉसेज रहा, यू कैन एनालाइज राइट। उसके बाद अगर आपको लगे कि भाई सीखना चाहिए प्राइस सेक्शन, तो एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो।